The Tale of Custard the Dragon is a whimsical poem written by Ogden Nash. This delightful tale, expertly explained by Ignited Minds Tutorials, revolves around a seemingly cowardly dragon named Custard. The poem begins by showcasing the bravery of Belinda, the protagonist, and her companions, brave dogs and a brave cat. However, the poem takes an unexpected turn when Custard, the supposed cowardly dragon, is challenged to prove his courage. As the story unfolds, it becomes apparent that Custard is not the weakling he is perceived to be. When faced with danger, Custard proves his valor by swallowing a pirate and a mouse, engaging in a fierce battle with a mouse dragon, and emerging victorious. The underlying theme of the poem is the contrast between appearances and reality. It challenges the notion of bravery and cowardice, emphasizing that true valor can come from the most unexpected places. Ignited Minds Tutorials expertly explains the poem's motifs and metaphors through thoughtful analysis. They highlight the importance of not judging a book by its cover and encourage readers to look beyond surface perceptions. By providing a concise overview of the poem's themes and motifs, Ignited Minds Tutorials helps readers appreciate the deeper meaning behind the tale of Custard the Dragon. This explanation serves as a valuable resource for those seeking to delve into the enchanting world of poetry. Okay, people, we will do this last poem, take the tale of Custard the Dragon, and this is basically a poem which is written by Ogden Nash. ठीक है, ये वाले पोएम में एक मतलब ऐसा कैरेक्टर है ड्रैगन जिसको दिखाया गया कि बहुत कावर्ड सा है. ठीक है, एक छोटी सी लड़की है, उसके बहुत सारे पेट्स हैं. शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेट्स. ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज पेट्स देयर इज दिस ड्रैगन. और ये ड्रैगन हालांकि साइज में बहुत बड़ा होता है और बहुत फियरफुल भी होता है, लेकिन ये ड्रैगन ही उन सब में से सबसे कावर्ड है. ठीक है, लेकिन ही इमर्जेस आउट टू बी द मोस्ट करेजियस ऑफ देम. ठीक है, so this is the poem all about. ठीक है, the tale of Custard Dragon. इसमें उसके बहुत सारे और भी पेट्स हैं who are portrayed as brave. However, the dragon is portrayed as someone who is timid. So the moral of the story is कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि बिकता भी हो, है ना. मतलब जो वो दिख रहा था अभी तक कि वो टिमिड है, बट कोई एक पायरेट आता है और इस पायरेट से बाकी सब भाग जाते हैं, सिर्फ यही लड़ता है. ठीक है, so the dragon who was basically portrayed as someone who is timid actually emerges out to be someone who is courageous. ठीक है, ओके. देखिए, प्रॉब्लम ये है कि डरते सभी हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं. कुछ लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं. बट ऐसा नहीं कि डरता कोई नहीं है. एवरीबडी विल बेसिकली बी अफ्रेड ऑफ समथिंग और द अदर. किसी ना किसी चीज का डर सबको ही होता है. ठीक है, कोई भी निडर नहीं होता है. इट्स जस्ट हाउ वी एक्सप्रेस इट. कोई उसको मतलब उस एक्सप्रेशन को फेस पे आने नहीं देता है और कोई उसको फेस पे आने देता है. ठीक है, जो फेस पे आने देता है उसको हम जनरली डरपोक बोलते हैं. लेकिन जिसके हाथ में तलवार है या जिसके हाथ में बंदूक है वो भी डरेगा. ठीक है, वो भी डरेगा. ऐसा कोई निडर नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि एट वन डे वी आर ऑल गोइंग टू मीट आवर एंड्स. ठीक है, एक ना एक दिन हम सबका खात्मा होगा ही. वो नेचुरल तरीके से हो या अननेचुरल तरीके से हो, वी हैव टू लीव द वर्ल्ड वन डे. और वो वन डे कब होगा ये हमको निर्धारित नहीं है. सो डर का होना बहुत स्वाभाविक है, बट डर का फेस पे आना मतलब वो सामने वाले को और कॉन्फिडेंस दे देता है कि इसको हराना आसान है. सोहम जी, इसको जरा बंद कर देंगे क्या? थैंक यू सो मच. हाँ, ओके ओके. द आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज. सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम पीपल? द आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज and conquering fear through courage and determination is the theme of Ogden Nash's poem, The Tale of Custard the Dragon. In the poem, a dragon by the name of Custard, ठीक है, तो नाम क्या है भाई साहब इसका? कस्टर्ड. overcame his fear of not having a safe place to sleep to defend the inhabitants from a pirate. तो कोई पायरेट था और उसको भाई साहब कोई सेफ प्लेस नहीं मिल रहा था. ठीक है, the poem emphasizes the idea that even the most courageous creatures can experience fears and that these anxieties and difficulties can be conquered by bravery and tenacity. तो सबको डर सबको है. ठीक है, डर के आगे जीत है इसी ऋतिक रोशन बोल सकता है, बाकी डर उसको भी लगता रहेगा. ठीक है, तो it's something that is inherent in us. Everybody will have the fear factor because हमको मालूम है कि भाई साहब हाँ मरेंगे तो हम
मालूम है, कब ये नहीं मालूम है, इस बात का ही डर है। अगर हमको मालूम है कि भाई साहब हम 50 साल बाद मरने वाले, इस दिन को मरेंगे, तो हमको डर नहीं रहेगा, कुछ भी आवन हम जिंदा रहेंगे, है ना। लेकिन वो चीज हमको मालूम नहीं है, ठीक है। द ओनली रीजन दैट वी ऑल हैव दिस फियर फैक्टर इज वी आर नॉट अवेयर एज टू व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है। सो ये सब सारे जंतुओं को और सारे प्राणियों को ही होगा। कुछ लोगों के एक्सप्रेशन पे ये फियर आ जाता है और कुछ लोगों को इस चीज को दबा के रखने में करेजियस होते हैं। सो हम इसी को करेजियस बोलेंगे जो अपने फियर को भाई साहब दबा के रखे, फेस पे ना आने दे, ठीक है। ओके, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, समरी अगर हम देखेंगे इस पोएम का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड, एक बैलेड है। इट इज अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ कावर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। कस्टर्ड इज द पेट ऑफ बेलिंडा, अ लिटिल गर्ल। तो इसके भाई साहब बहुत सारे पेट्स हैं और कस्टर्ड उनमें से एक पेट है, ठीक है। जैसे बहुत सारे डॉल्स होते हैं ना खेलने के लिए, खिलौने होते हैं, वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है और उसके मतलब बहुत सारे पेट्स में कस्टर्ड इज ऑल्सो अ, कस्टर्ड हु इज बेसिकली अ ड्रैगन इज ऑल्सो अ पेट, ठीक है। A little girl who lives in a little white house with her pets. She has a black kitten named Ink. तो उसके पास भाई साहब एक ब्लैक किटन है जिसका नाम इंक है, मतलब इसके और दूसरे पेट्स की जानकारी दे रहे हैं। अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक, तो एक ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है। अ येलो डॉग मस्टर्ड एंड कावर्डली ड्रैगन कस्टर्ड, ठीक है। तो इसके नाम के साथ ही ये एडजेक्टिव आ रहा है, ड्रैगन जो है कावर्डली है, डरपोक है, ठीक है। ओके, The poet says that all of them are very brave except the dragon. सब के सब भाई साहब बहुत साहसी हैं, सिर्फ the dragon. Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger or lion, but the dragon is very timid. ठीक है, timid है मतलब बहुत ही डरपोक है। He always demands a safe place for himself. कोई एक सुरक्षित जगह वो हर समय डिमांड करता रहता है। All the other characters make fun of him, but one night they are surprised by the entry of a pirate in the house. एक कोई भाई साहब, पायरेट मतलब डकैत, ठीक है, कोई आता है भाई साहब, एक पायरेट इन द हाउस। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। बाकी सारे पेट्स भाई साहब इधर उधर भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। बट टू एवरीवन सरप्राइज द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम बट ऑल्सो ईट्स हिम अप, उसको भाई साहब खा जाता है, ठीक है, लड़के उसको मार के खा जाता है। ऑल ऑफ देम वेर सेड बाय कस्टर्ड, दे थैंक हिम, बट एट द एंड दे रियलाइज दैट दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड. So all of them suddenly start saying that they are more brave and could have handled the situation in a much better way. Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situations of life. ठीक है, ज्यादा करके, और ये ऐसा सच भी है, ठीक है। अक्सर जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं। वो डरपोक क्यों होते हैं? क्योंकि वो चीजों से डरते हैं, कुछ चीजों से उनको कॉन्सिक्वेंसेज मालूम है, शायद उन्होंने देखा रहेगा, ठीक है, दे हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ इट एंड दैट्स द रीजन दे आर अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। तो अक्सर जो डरपोक लोग होते हैं उनको मतलब वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। द मोमेंट दे गेट समथिंग एज अ सर्कमस्टेंस दे विल हैंडल इट ब्रेवली, ठीक है, ये उनके ऊपर होता है। हालांकि हम उनका मजाक जरूर बनाते हैं, ठीक है। पोएम, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a Rielo little pet dragon. तो यहाँ पे बेलिंडा के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बहुत सिंपल सा है भाई साहब, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। शी लिव्ड, बेलिंडा इज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक उसके पास ब्लैक किटन था, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, ये सारे उसके पेट्स हैं भाई साहब, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो कलर का डॉग है, एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन मतलब भाई साहब इसका एक गाड़ी था, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड अदर स्पेसिफिक पर्पसेस, एंड अ रियलो ट्रिलो लिटिल प्लेट ड्रैगन, ठीक है। रियलियो ट्रिलियो एक वर्ड नहीं है, ठीक है, हमने वर्ड बना दिया है, ठीक है। तो मतलब आप देखोगे ना, जो लोग गाने लिखते हैं कभी कभी अपना ही कोई वर्ड ठूंस देते हैं, ठीक है। तो या तो जो लोग पोएट्स होते हैं वो अपना ही कोई वर्ड बनाकर ठूंस देते हैं। रियल ट्रियल एक्चुअली, रियल एंड ट्रू एक्चुअली अदर वर्ड्स from which the poet has made words realio and trulio. Actually the words are real and true, okay. Okay, explanation of the poem. The poet says that once there was a little girl named Belinda. She lived in a little white house. She lived with some creatures who were her pets. They were a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon
एंड अ क्रिएचर दैट द पोएट सेज वाज रियली एंड ट्रूली। तो यहाँ पे भाई साहब रियली ट्रूली मतलब रियली रियली एंड ट्रूली, ठीक है, रियली एंड ट्रूली अ ड्रैगन, ठीक है। ये एक पोएटिक फेज है, रियलियो ट्रूलियो, ठीक है, ऐसा हम अगर बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कुंजवा, ऐसा ऐसा बोल दी किसी का नाम, ठीक है, तो ये एक मजाकिया सेंस में है, ठीक है। सो राइमिंग स्कीम भाई साहब ए बी बी हो गया भाई साहब आपका, देखो हाउस माउस ए, और ये वैगन ड्रैगन ए बी बी, ठीक है, ओके। रेपिटेशन ऑफ द वर्ड लिटिल आपका भाई साहब यहाँ पे देखो लिटिल वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, ठीक है, एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन। तो ये आपका भाई साहब रेपिटेशन हुआ है, इस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ऑक्सीमोरॉन, यूज ऑफ टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, जैसे अभी मैंने इनसे पूछा था कोई, तो आपके पेपर में कौन सा तो एक वर्ड आया था, ठीक है, वो एक पोएटिक डिवाइस होती है ऑक्सीमोरॉन, जिसमें आप पेट बोल रहे हैं और ड्रैगन भी बोल रहे हैं। पेट मतलब क्या है, जो आपका हुक्म माने, है ना, जो आपके पास रहे, पेट उसको बोलते हैं। छोटा सा टुन्नू सा कुछ तो होगा आपके पास, उसको हम पेट बोलते हैं। लेकिन ड्रैगन अगर देखोगे एक मैसिव क्रीचर होता है, ठीक है। सो बोथ आर ऑक्सीमोरॉन्स, पेट ड्रैगन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन्स मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइंस, एंड अ लिटिल एंड अ रियलियो, ठीक है। तो एनाफोरा भाई साहब रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइंस। तो आप अगर देखोगे भाई साहब एंड अ लिटिल एंड अ, तो ये देखो जो एंड अ है ये दो कंसेक्यूटिव लाइंस में रिपीट हुआ है एट द स्टार्ट। सो दिस इज अ पोएटिक डिवाइस नोन एज एनाफोरा, ठीक है। ओके ओके ओके। रिफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन एंड अ रियलियो ट्रूलियो। तो भाई साहब आपका भाई साहब रेपिटेशन हुआ है एक सेंटेंस का। पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस, आपको जब लाइसेंस मिलता है किसी चीज का तो आप उसका दुर्व्यवहार कर सकते हैं ना। भाई साहब आपने गन खरीदा, उसका लाइसेंस ले लिया, भाई साहब किसी को भी उड़ा दो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। तो पोएटिक लाइसेंस है बेसिकली, मतलब पोएम्स में हम कभी कभी वर्ड को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोल सकते हैं। तो रियलियो एंड ट्रूलियो आर फॉर रियल एंड ट्रू, ठीक है। द स्पेलिंग्स हैव बीन चेंज टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। इस तरीके के पोएटिक डिवाइस को अपन पोएटिक लाइसेंस बोलेंगे, ठीक है, ओके। Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse was, she called him Blink। तो अभी भाई साहब इनके नाम्स बता रही है, ठीक है। लिटिल ब्लैक किटन इंक, ठीक है, she called him, there was a grey mouse, she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard, ठीक है, उसका नाम था मस्टर्ड, and the dragon was a coward and she called him Custard, ठीक है। कावर्ड था मतलब डरपोक था। मस्टर्ड एक येलो कलर फ्लावर होता है, ठीक है, वीकलिंग, ठीक है। कावर्ड, कावर्ड मतलब वीकलिंग, मतलब एक डरपोक, ठीक है। सो द पोएट एक्सप्लेन्स द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट आर टेम्ड बाय बेलिंडा। ही सेज दैट द नेम ऑफ ब्लैक किटन इज इंक, ठीक है, द नेम ऑफ ग्रे माउस इज ब्लिंक, द येलो dog which is little had yellow color and so she calls him mustard and the dragon that was coward means was a weakling called the custard। okay, rhyme scheme अगर आप देखोगे भाई साहब ये क्या हो जाएगा भाई साहब ए बी बी, ठीक है, ए बी बी। राइमिंग स्कीम आपका क्या हो गया ए बी बी, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। सिमिली, डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, ठीक है। तो डॉग को भाई साहब मस्टर्ड फ्लावर के साथ कंपेयर किया गया, शार्प एज मस्टर्ड। ऑलिट्रेशन, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सी साउंड भाई साहब देखो, अगर आप देखोगे ये कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, ये सी साउंड आपका रिपीटेडली यूज हुआ है, जिसको अपन क्या बोलेंगे ऑलिट्रेशन। व्हेन अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेडली यूज्ड इन अ सिंगल लाइन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलिट्रेशन। एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड, तो आपने भाई साहब एंड द लिटिल, ठीक है, एंड द लिटिल दो कंसेक्यूटिव लाइंस में यूज हुआ है तो उसको अपन एनाफोरा बोलेंगे। रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे रिपीटेड यूज लिटिल लिटिल, ठीक है, यहाँ पे और कहाँ पे हुआ भाई साहब एंड शी कॉल्ड हिम एट द ड्रैगन, ठीक है। तो ये आपका ये सारे आपके भाई साहब क्या है रेपिटेशंस है, ठीक है। एनाफोरा ये वाला पोर्शन हो गया, देखो दिस इज बेसिकली एनाफोरा, ठीक है, ओके। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ठीक है, बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो जैसे भाई साहब ड्रैगन का होता है, बड़े बड़े दांत थे इसके, ठीक है, स्पाइक्स थे इसके, वैसे कांटे थे इसके, ठीक है, जैसे ड्रैगन का होता है। ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, ड्रैगन के जैसे स्केल्स होते हैं वैसा था इसका। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ड्रैगन के मुंह से जैसे आग निकलती थी ऐसा बोला जाता था, ठीक है। चिमनी फॉर अ नोज,
मतलब इसके नोज जो थे एक चिमनी की तरह थे, चिमनी से जैसा धुआं निकलता है वैसा, ठीक है। एंड रियली और ट्रियली डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है। और रियली और ट्रियली मतलब डैगर्स थे, मतलब उसके जो पैर थे उसमें जो नाखून थे वो एक्चुअली छुरी की तरह थे, डैगर्स, बिग डैगर्स, जिससे मर्डर किया जा सके। किसी को अगर इसने वैसा पैर रख दिया तो गया वो, ठीक है। सो एंड रियली एंड ट्रूली देयर वर डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है। ओके, स्पाइक्स क्या होते हैं भाई साहब? थिन पॉइंटेड सरफेस, स्केल्स, थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। ज्यादा करके आपके फिश में और रेप्टाइल्स में आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, और ड्रैगन भी भाई साहब एक तरीके का रेप्टाइल ही है, तो इसमें आपको ये टेल देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडरनीथ, सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, फायरप्लेस, एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन और मेटल फॉर एन ओपन फायर, ठीक है। तो आपका अगर देखोगे भाई साहब, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, फायरप्लेस जहां पे आग जल रहा हो उसका माउथ भी वैसे ही था। ये जो पूरा ड्रैगन था इसका माउथ भी भाई साहब वैसे ही था, ऐसा आग जल रहा हो ऐसा था, ठीक है। इट्स लाइक अ फायरप्लेस, ठीक है। एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन और मेटल दैट इज यूज्ड फॉर ओपन, डैगर अ शार्प नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अगर हम देखेंगे, द पोएट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन दैट इट हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप, but quite contrary to his structure which was the most fearful of all the animals, ठीक है। लेकिन वो कावर्ड था, ठीक है। इन सारे डॉग्स और किटन और माउस जो बेसिकली क्या होते हैं, मतलब उतने फियरफुल नहीं होते हैं, उनसे ड्रैगन कहीं ज्यादा फियरफुल होता है और था भी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कावर्ड भी था, वो डरपोक भी था, ठीक है। दिस मीन्स दैट हिज स्किन वाज पॉइंटेड एट द टॉप, ऑन द लोअर पार्ट इट हैड स्केल्स which were bony plates to protect the skin. His mouth had been compared to a fireplace because it is assumed that dragons can release fire from the mouth. ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप देखोगे पुराने जमाने के पेंटिंग्स में भी ड्रैगन को ऐसे फायर रिलीज करते हुए दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। स्पीशीज में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि दे वर हाई नॉन वेज ईटर्स, ठीक है। तो मतलब उनके शरीर में काफी सारा हीट था, ठीक है, दैट वाज ऑलवेज देयर। Even his nose is compared to a chimney which is used to pass out smoke. His feet are sharp knife that is like a dagger. तो राइमिंग स्कीम अगर आप देखा जाए तो A B B है, टीथ और अंडरनीथ और नोज और टोज है, ठीक है। सिमिलरली ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विद फायरप्लेस, माउथ लाइक अ फायरप्लेस। रिफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, अगेन अ रियलियो ट्रूलियो, मेटाफर, चिमनी फॉर अ नोज, द नोज इज लाइक अ चिमनी। भाई साहब इसका जो नोज है वो चिमनी की तरह है, उससे भाई साहब धुआं निकल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। तो बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ऐसा लगता था कि बियर्स जैसे होते हैं ना, मतलब दारू नहीं, ठीक है, बियर मतलब जो आपका एनिमल होता है, तो बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। शी वाज वेरी ब्रेव एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। तो ये इंक कौन था भाई साहब? कैट, और ब्लिंक द माउस। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव थे कि भाई साहब ये शेरों को भी खदेड़ दें, ठीक है, ऐसे थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो मस्टर्ड के ब्रेवनेस को किससे कंपेयर किया गया भाई साहब? लाइक अ टाइगर, जो गुस्से वाला टाइगर होता है, जो गुस्से में रहता है, उसकी तरह इसको कंपेयर किया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। एक लौता कस्टर्ड ही ऐसा था कि भाई साहब उसको कोई सेफ जगह दे दो, वो इसके लिए ही रोता रहता था, उसको कोई ऐसा जगह दे दो जो इन सब से सेफ हो, ठीक है। ओके, तो वैसा बैरल, ड्रम, चेज, हंट, फॉलो, रेज, अंगर, ओके। नाउ द पोएट एक्सप्लेन्स द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। ही सेज दैट बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बियर्स, मतलब बैरल ऑफ बियर्स बोला जा रहा है, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक वेर सो ब्रेव दैट दे कुड हंट लायंस। भाई साहब लायंस की हंटिंग कर ली है, इतने ब्रेव थे। सो हियर ही हैज शोन द ब्रेवरी ऑफ द किटन and the little mouse that could hunt even a lion. The dog was very brave, just like an angry tiger, a tiger in a rage, ठीक है। But to contrast of all of them was Custard. Custard भाई साहब इन सबसे भिन्न था, ठीक है। Custard the dragon was not brave. He was so afraid of everything that he always demanded a safe cage. तो ये सबसे डरपोक था, और इतना ज्यादा डरपोक था कि इसको हमेशा एक सेफ केज चाहिए रहेगा, ठीक है। He always demanded a safe cage. राइमिंग स्टिंगर हम देखेंगे भाई साहब ए बी बी है, बियर्स का स्टेयर्स के साथ, रेज का केज के साथ। ऑलिट्रेशन, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स। बी साउंड इज यहाँ पे रिपीट हो रहा है भाई साहब, बेलिंडा ब्रेव, ठीक है, बियर्स, ठीक है, बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बी साउंड इज रिपीटेड, सो ऑब्वियसली द पोएटिक डिवाइस हियर इज ऑलिटरेशन, ठीक है। सिमिलरली
बेलिंडाज ब्रेवरी इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा बैरल है जिसमें बहुत सारे बियर्स हैं, ठीक है, भालू हैं. मस्टर्ड ब्रेवरी इज कंपेयर टू दैट ऑफ एन एंग्री टाइगर. मस्टर्ड वाज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. असोनेंस यूज ऑफ वॉवल साउंड ए, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे एज, ब्रेव, एज, अ, ठीक है, बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो आपका भाई साहब ये शुरुआती तौर पे जो अ साउंड प्रोमिनेंटली कुछ वर्ड्स में एक सेंटेंस में यूज हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन. दैट इज नोन, सॉरी, असोनेंट्स, ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे बेलिंडा, ठीक है, वॉज, एज, ब्रेव, एज, ए, बैरल, ठीक है, बियर्स, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब ए साउंड प्रोमिनेंटली यूज हो रहा है, ठीक है. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. तो बेलिंडा इसको गुदगुदी करती थी, ठीक है, क्योंकि डरपोक था, और अनमर्सीफुल, उसमें कोई उसको तरस नहीं आता था, अनमर्सीफुली वो उसको टिकल करती थी. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, ठीक है. तो परसीवल बेसिकली क्या हुआ था, एक नाइट इन किंग अर्थर्स कोर्ट. किंग अर्थर बहुत फेमस थे और उसके उसमें एक नाइट हुआ करता था जो बहुत ही डरपोक सा था, ठीक है, उसको क्या बुलाया जाते थे, इनको परसीवल बुलाते थे. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों भी इसको चिढ़ाते थे परसीवल नाम से, ठीक है. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. तो ये भाई साहब वैगन में बैठ के इसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, ठीक है. ऑल द रियलो ट्रूलो कावर्डली ड्रैगन, ठीक है, जितने रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, ठीक है. सो ये स्ट्रोक करते थे, मतलब टिकल मतलब गुदगुदी करना, अनमर्सीफुल, बड़े क्रूएल तरीके से बेलिंडा भी इसका मजाक उड़ाती थी और बाकी सब लोग भी इसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है. अ नाइट इन द किंग अर्थर्स कोर्ट, ठीक है. Explanation of the poem passage above. Belinda used to stroke the dragon in a very cruel way. बहुत बुरी तरीके से इसको पीटती, मतलब स्ट्रोक मतलब इसको गुदगुदी करना. Ink, blink and mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival. Percival एक knight हुआ करता था एक king के कोर्ट में, who was thought to be brave but ran away due to lack of courage, ठीक है, was thought to be brave but ran away due to lack of courage. They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. तो ये little red wagon में बैठकर इन सबको भाई साहब चिढ़ाते रहते थे, ठीक है, क्लियर है. लिटरेरी डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम AABB, अनमर्सीफुल, परसीवल, वैगन, ड्रैगन, ठीक है. तो आपका भाई साहब अनमर्सीफुल एंड परसीवल और वैगन और ड्रैगन, ठीक है, अनमर्सीफुल एंड परसीवल. रिफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, अगेन अ रियलियो ट्रूलियो, ठीक है. तो रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस बार बार होना. Repetition, use of the word tickled him, allusion, reference to any person or a place, Percival. Personification, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival, ठीक है. तो आपका भाई साहब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे इसको ये रूडली इसको क्या बोलता देते भाई साहब, परसीवल के नाम से, ठीक है. ओके, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house, ठीक है, and blink said wake, which is giggling for a mouse, ठीक है. Ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe cage, ठीक है. जब कस्टर्ड भाई साहब रो रहा था, ठीक है, इसको एक नाइस सा सेफ सा केज दे दो, तो बेलिंडा भाई साहब उसका हंसी मजाक उड़ाती थी. बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, इतना हंसी आता था उसको कि भाई साहब पूरा उसका जो हाउस है वो शुक करने लगता था. एंड ब्लिंक एंड वेक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, ठीक है. एंड ब्लिंक सेड वेक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, ठीक है. Okay, so giggle to laugh is sound by the made by the mouse, ठीक है. तो सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है. The poet says that Belinda used to laugh so loudly, ठीक है. Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Blink the mouse used to make laugh and make a sound of wake. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage, ठीक है. तो राइमिंग स्कीम भाई साहब आपका ABB हो गया, हाउस, माउस, रेज, केज. ओनोमेटोपिया, यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. गिगल्ड, ठीक है, गिगल्ड मतलब एक ड्रामेटिक इफेक्ट. ये गिगल्ड मतलब साउंड, जैसे अगर मैं बोलूं अ कैट म्यूज, तो ये म्यूज हुआ, दैट इज बेसिकली ओनोमेटोपिया, ठीक है, ठीक है. तो ये जो साउंड प्रोड्यूस, अ डक क्वैक्स, ठीक है, तो ये क्वैक्स हुआ, दिस इज ऑल्सो ओनोमेटोपिया. तो यहाँ पे भी गिगल्ड मतलब हंसी मजाक करना, ठीक है. सो दैट इज ओनोमेटोपिया. ओके,
रेपिटेशन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक रेपिटेशन हो गया। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एक बहुत ही जोर का साउंड आया। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड ऑल अराउंड। म्योट क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो मतलब विंडो, ठीक है। इट इज बेसिकली अगेन देखो बहुत सारे जगहों पे जैसे इन्होंने पोएटिक लाइसेंस के हिसाब से वर्ड्स को ट्विक एंड ट्विस्ट किया है, ठीक है। Nasty, bad or unpleasant a sound हुआ, growled, bark, pirate a person who robs ship in the sea, window is used for a window, एक डकैत आया हुआ है, ठीक है। So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. तो एक pirate को देखा। The dog barked at him and the kitten mewed at him. Belinda cried, "Ooh!" because all of them were scared of the pirate. ठीक है। तो भाई साहब चोर था, ये डकैत था। लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम अगर आप देखोगे AABB है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड S, सडनली, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड S, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स ये है भाई साहब सडनली दे हैड अ नास्टी साउंड, ठीक है। ओनोमेटोपिया यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। मस्टर्ड ग्राउल्ड, तो ये भाई साहब क्या हो गया, ओनोमेटोपिया। इसने भाई साहब इंक ने म्यू किया, क्राइड इंक, ठीक है। पोएटिक लाइसेंस विंडो इज रिटन हियर एज विंडा, ठीक है। विंडो को विंडा लिखा गया है जस्ट टू क्रिएट द राइम, ठीक है। विंडो को यहाँ पे विंडा रिप्रेजेंट किया गया है। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कट लैश ब्राइट, ठीक है। एक ब्लेड से एक छुरी सा था उसके टीथ में और दो हाथों में उसका गन था, ठीक है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ठीक है। तो इसके पास हैंडगन था और भाई साहब इसके पास देयर वाज अ ब्लेड एज वेल। द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, ही सेज दैट द पायरेट वाज होल्डिंग हैंडगन्स in both his hands and had a little sword too. He was holding his sword with his teeth. He had a black beard and his one leg was made up of wood. एक लेग जो उसका वुड से बना हुआ था। हो सकता है भाई साहब कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो या गिरा हो, ठीक है। This means that though the pirate was a disabled person, but still he was frightening all other characters. Maybe he was disabled because of some accident, कुछ हादसा हुआ रहेगा। Moreover, he intended to harm them. तो जिसके पास भाई साहब हथियार लोडेड रहते हैं, ऑब्वियसली उसका एक इंटेंशन तो दूसरों को हर्ट करना रहता है। लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है आपका, AABB, राइट का ब्राइट के साथ, वुड का गुड के साथ। ऑलिट्रेशन, बियर्ड वाज ब्लैक B, he held in his H, ठीक है, इमेजिनरी। एन इमेज इज क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, अपीयरेंस ऑफ द पायरेट का इमेजिनरी क्रिएट हुआ है। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help," but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically, mousehold, ठीक है। Paled, turn yellow due to fear, yelp, a short sharp cry, trickle, here run, strategically मतलब plan, mousehold, here it is the hole where the mouse lives, ठीक है। When all of them saw the pirate, they got frightened. भाई साहब ये डर गए। Belinda was so frightened that she turned yellow due to fear and started crying for help. Mustard the dog started crying for help too. The kitten Ink ran down towards the bottom of the house as if they had already planned for it. The mouse Ink ran into his little mouse hole in order to save himself. तो सब भागे भाई साहब, जो लोग अपने आप को अभी तक करेजियस दिखा रहे थे, सब के सब भाई साहब भागे, ठीक है। They all took refuge. Literary devices राइमिंग स्कीम आपका क्या हो गया, AABB, help, yelp, household, mousehold, transferred epithet, टेरिफाइड येल्प, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब ये इसका जो इमोशन है इस वर्ड पे ट्रांसफर हो रहा है, टेरिफाइड येल्प। रेपिटेशन, हेल्प, हेल्प, पोएटिक लाइसेंस, यूज ऑफ द वर्ड माउस होल्ड टू राइम विद हाउस होल्ड। माउस होल्ड नहीं होता है भाई साहब, हाउस होल्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगेन पोएटिक लाइसेंस के हिसाब से ये वर्ड क्रिएट कर दिया गया। इस पर्टिकुलर पोएम में काफी सारे पोएटिक लाइसेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स क्रिएट हुए, जैसे माउस होल्ड क्रिएट हुआ है। उसके बाद अभी आपने देखा भाई साहब रियल के लिए क्या, रियलियो, ठीक है। ट्रू के लिए क्या, ट्रूलियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भाई साहब माउस होल्ड क्रिएट हुआ, विंड के लिए, विंडो के लिए विंडा, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए क्रिएट हुए। बट एट जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन बाकी सब लोग भागे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन कस्टर्ड जो है भाई साहब एकदम डट के खड़ा रहा, ठीक है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो जैसे एक इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जोर से आवाज आता है वैसा।
clashed his tail like irons in a dungeon, ठीक है। तो अंडरग्राउंड प्रिजन में जैसे आयरन को ढांग ढांग करके आवाज आता है वैसा, ठीक है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम, ठीक है। क्लैटर क्लैंक मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, बर्तन जैसे झंझना के गिरते हैं वैसा, ठीक है। जैंगलिंग स्क्विम, साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, ठीक है। एक रॉबिन जैसे, रॉबिन मतलब एक चिड़िया होता है, और चिड़िया, ये रॉबिन जो चिड़िया है वो बेसिकली वॉर्म्स खाती है, और जैसे ही इसको वॉर्म बहुत दूर दिखता है पट से उछाल लेता है इसको, ठीक है। तो he went at the pirate like a robin at a worm, ठीक है। फट से गया भाई साहब ये, ओके। explanation: when all the other characters that were earlier defined as very brave got frightened, the dragon did the most unexpected thing. He jumped on the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. Not only this, he hit his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. He attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worms, ठीक है। So he was quick in his response. Rhyming scheme भाई साहब AABB, engine, dungeon, squirm, worm, ठीक है। Simile, sound of dragon is compared with sound of engine. बहुत जोर से जब आप किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जो आवाज आता है वैसे ही ड्रैगन के वॉइस को कंपेयर किया गया। Clashed his tails like iron in a dungeon. Dragon's attack on pirate is compared to a robin bird. एक रॉबिन बर्ड जिस तरह से वॉर्म पे अटैक करता है, ठीक है। Onomatopoeia, usage of sound words to create dramatic effect. Clatter, clank, jangling, imagery. The attack by the dragon is expressed in a way to make an image in our minds. तो भाई साहब जिस तरह से ये इस पे झपटा, ठीक है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit, ठीक है। So भाई साहब, and gulped some grog from his pocket flagon. तो भाई साहब, the pirate gaped at Belinda's dragon, stared with mouth wide open, मतलब अरे बाप रे ये ड्रैगन आ रहा है, इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। गेप मतलब आश्चर्यचकित होकर देखना, ठीक है। And gulped some grog from his pocket flagon, ठीक है। गल्प मतलब swallow करना, ठीक है। Some grog from, grog मतलब एक ड्रिंक, मतलब अपने आप को ब्रेव बनाने के लिए इसने एक ड्रिंक अपने पॉकेट से पी लिया, ठीक है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, इसने 2 बुलेट्स फायर तो किए लेकिन इसको हिट नहीं किया, ठीक है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, ठीक है। एंड कस्टर्ड स्वॉलोड हिम हरीडली, ठीक है। तो एवरी बिट, तो यहाँ पे भाई साहब फ्लैगन, अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड। पहले के जमाने में देखो छोटे छोटे अमाउंट में लोग ड्रिंक्स पीते रहते थे, तो इसमें शराब रहती थी, ऐसा पॉकेट में रखने वाला चीज होता था, इसमें से फटफट उसने भाई साहब शराब पी अपने को ब्रेव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको अभी, ओके। द पायरेट गॉट सो शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन दैट ही ओपनड हिज माउथ वाइड विथ शॉक, ठीक है। टू गैदर सम स्ट्रेंथ ही ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम अ कंटेनर इन हिज पॉकेट। आफ्टर गैदरिंग सम करेज ही फायर्ड 2 बुलेट्स ऑन द ड्रैगन बट मिस्ड इट, तो लगा नहीं उसको भाई साहब। Custard the dragon ate every bit of this fierce looking pirate. ये भाई साहब पूरा का पूरा उसको चबा के खा गया, ठीक है। पूरे पायरेट को भाई साहब ये खाया गया, ओके। सो राइमिंग स्कीम भाई साहब क्या हो गया भाई, AABB, ड्रैगन फ्लैगन हिट बिट, ठीक है। ऑलिट्रेशन गल्प ग्रॉग, इसमें भाई साहब G साउंड प्रोमिनेंट आ रहा है। इमेजिनरी, दे हैव शोन द रिएक्शन एंड एक्शंस मेड बाय द पायरेट ऑन सीइंग द ड्रैगन। तो जो भी एक्शन और रिएक्शन है मेड बाय द पायरेट ऑन सीइंग द ड्रैगन वो इसमें दिया गया है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, अभी सब लोग भाई साहब इसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ठीक है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, जैसे कुत्ते लोग भाई साहब लिक करते हैं जब वो खुश होते हैं, ठीक है। बहुत हंसी आ रही तो घर चले जा, घर चले जा, इस मूड में तू एग्जाम नहीं दे सकता। नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, ठीक है। नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी भाई साहब उस पायरेट पे तरस नहीं आया जो ये ड्रैगन कच्चा चबा गया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट मतलब दे डांस्ड इन जॉय अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, ठीक है। सो नाउ एवरीबडी वाज हैप्पी एंड नाउ एवरीबडी वाज बेसिकली praising or around the dragon. When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and Mustard licked him. No one was sad for the death of the pirate. They all were very happy. Both Ink and Blink were running around the dragon
in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he had saved them. यार ये कौन से टाइम पे लोग आते हैं पता नहीं. ओके, सो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे क्या हुए हैं भाई साहब? राइमिंग स्कीम, हिम, विक्टिम, ठीक है, हिम, विक्टिम, और भाई साहब क्या है? गायरेट, पायरेट, ऑलिट्रेशन, ग्ली एंड गायरेट जी, असोनेंस, यूज ऑफ द वॉवल साउंड ओ, नो वन माउंटेड फॉर, यूज ऑफ वॉवल साउंड आई, इंक, ब्लिंक, इन, ठीक है, डिड, यूज ऑफ वॉवल साउंड ए, दैट एट द पायरेट, ठीक है, तो यहाँ पे ए साउंड प्रोमिनेंट हुआ है. सो दिस इज बेसिकली असोनेंस. लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे क्या है? राइमिंग स्कीम ए बी बी, हिम, विक्टिम, गायरेट, पायरेट, ऑलिट्रेशन, ग्ली, डिड, गायरेट, ठीक है, ये जी. असोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ, नो वन मॉर्न फॉर, यूज फॉर वॉवल साउंड आई, तो ये बस रिपीट हो रहा है. आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन, दे चेंज्ड देयर माइंड, they were reminded of how they used to make fun of this coward dragon, and now they all were praising him. So at once the dog said that it was just because of some confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. तो अभी अपना रंग बदल रहे हैं ये. पहले तो उसको बहुत सा थैंक यू जनाया, ठीक है, कि इसने हम लोग को बचाया, लेकिन फटाक से रंग बदल रहे हैं. अरे हम भी लड़ गए होते, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कैसे लड़े, ठीक है. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than the Custard, ठीक है. The dragon said that he fully agreed to this and that all of them were more powerful and braver than them. Dragon भाई साहब अपने आप में एक इंटेलिजेंट क्रीचर था. उसने बोला हाँ सही बोल रहे हो तुम ही लोग लड़ लिए होते, ठीक है, अभी मैं सिर्फ लड़ लिया एक मौके वायदात पे, ठीक है. राइमिंग स्कीम भाई साहब ए बी बी, मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, बिंक, इंक, एग्री मी, बेलिंडा still believes in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her yellow little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard as brave as a tiger, but Custard keeps. तो अभी तक इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इसके बाद भी इनका यही मानना है कि they are the ones who were brave and not this, ठीक है. So at last the poet used the same, लाइट गई क्या भाई साहब? At last the poet used the same lines again to show that after this terrific episode in which the dragon was the hero, where all other characters still undermined him by saying that they were more powerful. नहीं, लाइट नहीं गई है भाई, ये तो जल रहा है, ठीक है. More powerful than him and could have handled the situation in a much better way. The poet says that life started again in the same manner. फिर भाई साहब वापस, ठीक है. Okay, Belinda still believes in that little white house with Ink, Blink, Mustard and Custard, and all of them were very brave, whereas the dragon is still a coward who always wants to stay safe in his cage. Literary devices यहाँ पे क्या यूज हुए? refrain, repetition of a sentence again and again, जैसे रियलो ट्रिलो, repetition stanza has been repeated, ठीक है. So ये था आपका poem in which a dragon basically is a pet and he fights for the entire family with a pirate. However, they for that instant, उस instant में सबने इसकी तारीफ की, लेकिन वापस फिर से सब उसको कावर्ड बोलने लगे, वापस फिर से सब अपने आप को ही ब्रेव बोलने लगे. So that is the irony of life.